Very good morning, students. This is the last topic of your history. Balkans, the Eastern question of your chapter number 1, Rise of Nationalism in Europe. Student, I am Poonam Prasad, again in front of you with the topic, the last topic, Balkans, the Eastern question. Students, sometimes question arises that why the Balkans were called the Eastern questions, और ऐसा बाल्कन में क्या हुआ जिसके कारण से एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री वो डिस्टर्ब हुआ. So before we let's go for the further, I just want to give you the composition of the Balkans. Children, this composition is quite important for your first 1 mark question, right? So let's talk on it. Students, the most serious source of nationalist tension in the Europe after 1871 was the area called the Balkans. Balkans was a region of geographical and ethnic variations. It means the people, different geographical variations and different ethnic or cultural group people were residing over that area, were living in that area. Comprising, if we are talking about at the present time, आज का जो रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, Slovenia, Serbia and Montenegro, whose inhabitants were called as Slavs. क्वेश्चन आ सकता है बाल्कन्स के जो रीजन्स थे उनके इनहेबिटेंट्स को क्या कहा जाता था, वहाँ के कलेक्टिवली लोगों को क्या कहा जाता था. बाल्कन एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसका मुख्यतः जो कंट्रोल था, द कंट्रोल वर इन द हैंड्स ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. बहुत ही पावरफुल मुस्लिम एम्पायर. मोस्टली Muslims dominated over the areas. Dynastic empire comprising a great mixture of races, languages and religions. The ruling class was Turkish. जो तुर्किस्तान कहते हैं तो उन पे तुर्क कहा करते थे, टर्किश. Whereas many of the subject people were either they were belongs to Christians or they were belongs to Jews. Fine. बेटा इसमें से अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो you can go for the 5 to 6 name of the country. So Balkans, this is all about the composition of the Balkans. Next, student, if we are talking about what were the causes of nationalist struggle in Balkans, Balkans में जो लोगों ने बाल्कन यानी ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ या जो बाल्कन्स में किस तरीके से जो डिस्टर्बेंसेस थे वो क्रिएट हो रहे थे, उसके पीछे के रीजंस के बारे में हम बात करते हैं. ऑटोमन एम्पायर between 1850 and 1871, it was confronted with the series of disruptive forces and nationalist movements in its western territories. Her difficulties attracted considerable interest on the part of other great powers of Europe. बाल्कन बहुत बड़ा ऑटोमन एम्पायर, हम लोगों ने देखा किस तरह से 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की वजह से ग्रीस अपने आप को इंडिपेंडेंट करा चुका था. जब ग्रीस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कराया और ग्रीस जब इंडिपेंडेंट हुआ, उसका सीधा असर उन अन्य देशों पे, उन अन्य रीजन्स पे पड़ा, क्षेत्रों पे पड़ा जो कि कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे, यानी जिनके ऊपर ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था. तो ये जो आइडियाज़ था, दैट आइडिया वाज कॉल्ड एज द स्प्रेडिंग ऑफ romantic nationalism in Balkans. The word is called as romantic nationalism, children. A part of that naturalist, that is romantic nationalism.
इन बाल्कन्स। ठीक है, तो यहाँ पे द वर्ड इज कॉल्ड एज नेशनलिस्ट। In Balkan, together with the disintegration of Roman Ottoman Empire, made this region very explosive. हर कोई अपने आप को फ्री करना चाहता था, हर कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता था, हर कोई चाहता था कि वो अपने आप को नेशन स्टेट में घोषित करे या इंडिपेंडेंट हो सिंपली। और यही कारण था कि ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे टूट रहा था और उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे थे। Although the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen herself through modernization and internal reforms. You have children, you have to go through with the reforms here. ऑटोमन एम्पायर नहीं चाहता था कि उसके द्वारा कैप्चर्ड टेरिटरीज अपने आप को फ्री कराए, इसके लिए उसने रिफॉर्म्स करने की घोषणा की। ये रिफॉर्म्स जो मुख्यतः थे, that is if we are talking about based on the democratic principles. Basically ऐसा नहीं था कि उन्होंने उसको प्रिंसिपैलिटीज़ वाइज यूज़ किया हो उन डेमोक्रेटिक राइट्स को, उन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, बट कहीं ना कहीं उन्होंने इक्वलिटी को इन्हांस करने की कोशिश की। Like if we see that equality before law should be maintained and equal eligibility for all public officers were guaranteed. क्योंकि कहीं समाज मुस्लिम्स एंड अदर वर्गों में डिवाइडेड था, कहीं ना कहीं मुस्लिम्स वर सुपीरियर इन दैट एरिया। तो जो एक रूलिंग क्लास था वो उसको ज़्यादा तवज्जो मिलती थी या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी। Christians and Muslims are like they could join the army. Hitherto they restricted to Muslims. System of taxation था, it was reformed children. जो जुडिशल रिफॉर्म्स भी किए गए, जो टॉर्चर जो सिस्टम था, टॉर्चरस सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड एंड द कंडीशन ऑफ कैप्टिव्स, इट मीन्स जो कैदी थे जेल में उनकी दशा को भी इम्प्रूव किया गया। इम्प्रूव कहने की बात कही गई। यूनिवर्सल करप्शन एंड एक्सटॉर्शन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स वर टू बी स्टॉप। कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर के में एक जो कहते हैं ना कि एक मिसरूल था, करप्शन था, लोग खुश नहीं थे, दबाव था, सप्रेशन था। तो ये अल्टीमेटली इट लीड्स टूवर्ड्स to raise the feeling of nationalism among those people who wanted to liberate themselves from the region of Ottoman Empire. For the next 20 years, efforts were made to implement these far-reaching reforms, but with increasing failure and disappointment. The disintegration of Roman Empire had gone too far, for its corruption was too deep-seated to permit any change. जो reforms Ottoman Empire wanted to implement, वो ultimately theoretically, practically वो justify नहीं हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे वो करप्शन हटाना चाहते थे, लेकिन करप्शन इतना ज़्यादा जड़ों तक पहुंचा हुआ था उन एरियाज़ में कि करप्शन को हटाया नहीं जा सका। European subject nationalists broke away from the Ottoman Empire one by one and declared their independence. People claimed independence or political right on the basis of nationality and used history to prove that once they had been independent but had been subjugated by the foreign powers. जिस तरह से हम इंडियंस ने फाइट किया अगेंस्ट कॉलोनियल पावर्स और हमने अपने आप को ये दर्शाया कि हम आज़ाद थे और आपने हमें गुलाम बनाया है ना, उसी तरीके से ऑटोमन एम्पायर के अंडर में जो रीजन्स थे उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया और वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे और उन्होंने ये साबित किया अपने इतिहास के द्वारा कि पहले वो फ्री कंट्री थे।
पहले वो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन फॉरेन पावर्स ने उनको कैप्चर किया अपने फ़ायदे के लिए, अपने नीड के लिए. हेंस द फॉरेन पीपल इन द ऑटोमन एम्पायर short of their struggle as an attempt to win back their independence. इस तरीके से जो regions they were under the Ottoman Empire, they struggled a lot to win back their independence. As this Slav people were struggling to gain independence. आप पूछे कैसे? तो Slav people, they were struggling to gain independence. Balkan regions became an area of intense conflict. जो Slav people थे, inhabitants in areas के लोगों को क्या बोला जाता था बेटा? Slavs. अब उन्होंने struggle करना शुरू किया किसके? Against Ottoman Empire. धीरे धीरे उन्होंने they wanted to fight with that, with the Ottoman Empire, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाल्कन स्टेट्स में कन्फ्लिक्ट कॉजेज हुआ, इंटेंस कन्फ्लिक्ट. एक दूसरे से लोग लड़ रहे थे. द बाल्कन स्टेट्स वर फाइटिंग नॉट फॉर देयर इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो दे वॉन्टेड टू इंक्रीज देयर टेरिटरीज. वो दूसरों को जीत कर अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहते थे, अपने टेरिटरीज, अपने पावर को. क्योंकि पुराने समय में बेटा जितना ज़्यादा टेरिटरीज हमारे हाथ में आती थी, हम ये साबित करते थे कि हम कितने पावरफुल हैं. तो इंक्रीज्ड देयर टेरिटरीज एट देयर एक्सपेंस ऑफ अदर्स. ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हुई, डिटोरिएट हुई, क्योंकि बाल्कन में एक तो इंटेंस ट्राइबलरी हो ही रही थी, बट साथ ही साथ जो बिग यूरोपियन पावर्स थे वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे थे. बिग पावर्स ने यूरोपियन एम्पायर को ये साबित किया कि वो बीमार व्यक्ति है यूरोप का. हम बीमार व्यक्ति को क्या बोलते हैं बेटा? जो कि फाइनेंशियली या फिज़िकली या मेंटली वो क्या है बेटा? वो सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तभी हम क्या बोलते हैं? वो बीमार व्यक्ति है. कारण क्या था ऑटोमन एम्पायर का? उसका कारण था कि वो इन लड़ाइयों के कारण फाइनेंशियल कंट्रोल खोता चला जा रहा था, वो कर्ज़ों में डूबता चला जा रहा था. धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वो उनके पावर, उनकी टेरिटरीज़ को उनसे छीन रहे थे. खुद एक तो टेरिटरीज़ जो थी, वो रीजन्स जो थे, वो अपने आप को लिबरेट करना चाहते थे, और वहाँ पे जो यूरोपियन पावर्स थे वो सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरीके से ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो जाए. और वो ख़त्म कब होगा? जब उसकी टेरिटरीज़ अपने आप को लिबरेट करेंगी. यहाँ पे जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ यूरोपियन कंट्रीज़, बेटा ये मुख्यतः वो यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो कहीं ना कहीं कॉलोनियल पावर बनकर, बिग यूरोपियन पावर बनकर उभरी, जिसमें कि मुख्यतः अगर हम बात करें तो जर्मन, रशियंस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे कंट्रीज़ शामिल थे, फ्रांस जैसे कंट्रीज शामिल थे बेटा. तो एक तरफ अगर ऑटोमन एम्पायर से उसके रीजन्स हटने लगते तो उसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ता बेटा? वो अपने पावर्स को लूज़ कर देता. कौन? ऑटोमन एम्पायर. वो अपने टेरिटरीज़ लूज़ होने का मतलब क्या था? उसका पावर का लूज़ होना. और पावर अगर लूज़ होगी तो वो ऑब्वियस ही बात है वो सिक मैन यानी बीमार व्यक्ति कहलाएगी, है ना बेटा? तो यहाँ पे ये यूरोपियन पावर्स कहीं ना कहीं ये उस अपॉर्चुनिटी, उस अवसर का इंतज़ार कर रहे थे जिसमें कि ऑटोमन एम्पायर पूरा टूट जाए और उसके टूटे हुए टेरिटरीज़ को कैप्चर्ड कौन कर ले? ये बिग यूरोपियन पावर्स. चिल्ड्रन, या ये जो घटनाएं घट रही थी वो कहाँ पे हो रही थी? ईस्टर्न यूरोप में. और वेस्टर्न यूरोप कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा था, अपने ट्रेडिंग को मजबूत कर रहा था, कॉलोनीज़ कैप्चर कर रहा था, अपने मिलिट्री और नेवल पावर्स को वो स्ट्रॉन्ग बना रहा था. और साथ ही साथ वो
उन कंट्रीज वो अपने पावर्स को, द पावर्स लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, they wanted to expand their territories and they also checked the powers of others over the Balkans. कहते हैं ना कि वो अपने टेरिटरीज को एक तरफ स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, फैला रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे, अपने पावर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे थे, और साथ ही साथ वो ये भी देख रहे थे कि ऑटोमन एम्पायर से रिलीज्ड जो बाल्कन्स जो लोग थे, यानी ऑटोमन एम्पायर से रिलीज पीपल जिन्होंने इंडिपेंडेंस लिया, कहीं उसको अदर बिग यूरोपियन पावर्स कैप्चर ना कर ले, और इसके कारण उन बिग यूरोपियन पावर्स के बीच में ही लड़ाई हुई, और जिसको कहा जाता है दैट वाज लेड टू द राइज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. चिल्ड्रन, क्वेश्चन में अराइजेस कि बाल्कन किस तरीके से कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर राइज, और हाउ कैन वी से दैट द Balkans was considered as the main cause behind the rise of First World War. Is that clear, student? तो इस तरीके से हमने देखा कि बाल्कन्स एक ईस्टर्न क्वेश्चन कहलाया, एक इंटेंस रेवलरी का प्लेस कहलाया, और वो एक कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. By this, students, we have completed our chapter. We have started our journey from the meaning of nationalism. हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी हैं. मैं इसका रिवीजन रिकैपिचुलेशन लूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दैट यू पीपल हैव टू गो थ्रू विद द नोट्स बेटा, है ना. तो you have to watch the video and you have to write down the complete your notes or complete your work, and revise the topic and also revise the chapter. Thank you, children. God bless you.